Good morning, class 12th. In accountancy class, today's our topic is comparative income statement. It means comparative statement of profit and loss. So first of all, we have to learn the format of comparative statement of profit and loss. So comparative statement of profit and loss for the year ending 31st March 2018 and 31st March 2019. So comparative statements are divided into two types, comparative balance sheet and comparative statement of profit and loss. इससे पहले बेटे हम comparative balance sheets का क्वेश्चन और फॉर्मेट कर चुके हैं. Now the comparative statement of profit and loss and the format is particulars, note number 31st March 2018, then the column of 31st March 2019, 31st March 2018 it means amount of previous year. Then the 31st March 2019 amount of current year. Increase, decrease, we have to find out the increase, decrease. Increase, decrease can be find out column B minus column A, right? Then percentage will be calculated increase or decrease divided by amount of previous year into 100, right? Now, the concept and the format of statement of profit and loss, comparative statement of profit and loss. First of all, the first item which are taken from the statement, that is revenue from operation. Revenue from operation means sales. और यहाँ पर बेटे हमने नेट सेल लेनी है, सेल माइनस सेल रिटर्न. Revenue from operation is the other name of sale, and in the statement you have to given revenue from operation, right? And it's a net revenue from operation, sale minus sale return. Then the item number 2 is add other income. सबसे पहले हमें revenue from operation लेना है. इसके बाद अगर कोई और other income just like rent receive, dividend receive, commission receive, इस तरह की कोई income हमें दी हुई है, then it will be added and term second item. So first item revenue from operation, second item add other income. Then the third item is total revenue. Third item is total revenue. Total revenue is the first plus second item. Third item will be calculated. First item plus second item, revenue from operation plus other income. Right? So each and every item का amount previous year का, current year का, then we have to find out increase, decrease. Then we have to find out the percentage. इसी तरह से अदर इनकम का भी अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, इंक्रीज, डिक्रीज एंड परसेंटेज. इसके बाद हम थर्ड आइटम लेंगे टोटल रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू का भी 2018 का अमाउंट, 2019 का अमाउंट, इंक्रीज, डिक्रीज और परसेंटेज. इसके बाद हमें बेटे फोर्थ आइटम लेनी है, और फोर्थ आइटम है लेस एक्सपेंसेस, राइट? तो एक्सपेंसेस, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे? इसमें सभी आइटम्स का हमने 2018 का अमाउंट, 2019 का अमाउंट, इंक्रीज, डिक्रीज और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. इसके बाद फोर्थ आइटम में जो हमने एक्सपेंसेस लेने हैं, वो एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इट मींस परचेज. बट स्टेटमेंट में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ही गिवन होगा. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये हर एक आइटम का हम इंक्रीज, डिक्रीज, परसेंटेज, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर और अमाउंट ऑफ करंट ईयर लेते चले जाएंगे. तो एक्सपेंसेस में हमारी आइटम्स इंक्लूड होंगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री. चेंजेस इन इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा बेटा, इन्वेंट्री मीन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. बट आपको स्टेटमेंट में चेंजेस इन इन्वेंट्री भी गिवन होगा. देन employee benefit expenses, finance cost, depreciation, other expenses. तो इन एक्सपेंसेस में से कोई भी आइटम आपको स्टेटमेंट में गिवन हो सकती है. इसमें इंक्लूड होंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीशिएशन. इसके बाद जो जो एक्सपेंसेस आपको स्टेटमेंट में गिवन होंगे वो सब एक्सपेंसेस हम एक्सपेंसेस के हेडिंग में ले लेंगे
और एवरी आइटम का, एवरी एक्सपेंसेस का हम 2018 का अमाउंट, 2019 का अमाउंट, इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड. After that we have to make the total of all the expenses under the heading of total expenses, amount of previous year of total expenses, amount of current year of total expenses, increase, decrease and percentage. Right? So first head revenue from operation, second head other income, third head total revenue, fourth head expenses, and after expenses total of the expenses will be, all the expenses will be added. Then come to the fifth head. Fifth head is profit before tax. Profit before tax will be calculated total revenue minus total expenses. It means third head minus fourth head. Profit before tax will be calculated total revenue minus total expenses. Right बेटे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. इट मींस थर्ड हेड माइनस फोर्थ हेड. प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 2018 का अमाउंट, 2019 का अमाउंट, इंक्रीज डिक्रीज, देन वी हैव टू कैलकुलेटेड द परसेंटेज. परसेंटेज आप जानते ही हैं, इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100. आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स we have to deduct tax which are given in the statement, percentage given in the statement. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिक्स्थ हेड हम टैक्स को डिडक्ट कर देंगे और टैक्स को डिडक्ट करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आएगा सेवंथ हेड की फॉर्म में. एंड सेवंथ हेड इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स फिफ्थ हेड माइनस सिक्स्थ हेड. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 का अमाउंट, 2019 का अमाउंट, इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज. तो बेटा इसमें हमने हर एक आइटम का प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, इंक्रीज डिक्रीज एंड परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड. एंड परसेंटेज, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज इज इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100. यहीं पे बेटे हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, इसी कॉलम में ही परसेंटेज भी, या फिर आप क्वेश्चन के नीचे सेपरेटली भी परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं वर्किंग नोट के अंदर. और सेपरेट मार्क्स होते हैं आपके वर्किंग नोट के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट करने के. सो स्टूडेंट, दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप यू हैव टू लर्न इट. इसको आपने लर्न करना है और लर्न करने के बाद आप इसको नोटबुक पे लिख के देखेंगे. ये फॉर्मेट, कौन सी आइटम्स आएंगी, कौन सी ऐड है, कौन सी लेस है, ये सारा फॉर्मेट आप लर्न करेंगे. इसके नाउ आफ्टर लर्निंग ऑफ दिस फॉर्मेट यू कैन वेरी इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. थैंक यू.